चलो let's start. What? आया होमवर्क आया? हेलो कंफर्टेबल होमवर्क वालों फिर अभी आज हम लोग करने वाले हैं थोड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट शेयर्स का। देखो बताता हूँ। Look at sum number 23. 23rd sum देखो सब लोग। Page 238, sum number 23. Page 238, sum number 23. Important concept है इधर। देखो ध्यान से। यार 11 चलो look at sum number 23 स्टार मार्क करना very important sum भावेश 23rd Jerry Limited issued 10,000 equity shares of 10 each payable in 4 equal parts. ठीक है? 4 equal parts का मतलब 10 रुपए का शेयर 4 पार्ट्स में मंगाया जा रहा है. That means it is 2.5 each. लॉक किया गया. आराम से संभाल के. फोर इक्वल पार्ट्स का मतलब क्या हुआ बेटा? 4 equal parts means it is application 2.5, allotment 2.5, first call and final call 2.5 each. बराबर है? Is that right? Now ध्यान से देखना. Company received applications for 12,000 equity shares. Is it oversubscribed or undersubscribed? Oversubscribed. 12,000 का applications आ गया. मिला? Hello? Got it? 10,000 इश्यू किया था, 12,000 का एप्लीकेशन आया. मनी और एप्लीकेशन वाज यूज्ड फॉर अलॉटमेंट पर्पस. दैट इज व्हाट प्रो रेटा. There is no rejection here. P was allotted 100 shares, did not pay the allotment money. Q was allotted 200 shares, did not pay the first call. All the shares were forfeited, and all the forfeited shares were reissued for ₹10 per share. And B part में दिया only P's shares were reissued at 8 per share. Can you see that? Sir, ये तो हमने सब किया हुआ है. ये तो कुछ नया नहीं दिख रहा है. दिख रहा है? दिखेगा. आगे दिखेगा. कुछ तो अलग है. देखते हैं. पहला एंट्री क्या होगा? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन. ये पोदार का हिट है. ये पोदार में आता ही है. प्रीलियम या सेमेस्टर. शेयर है सेमेस्टर में पोदार. तो या सेमेस्टर में या प्रीलियम में डालता ही है. उसका फेवरेट है पोदार. ये लेकिन 12th में नहीं है. इसलिए मैंने 12th में ये कंसेप्ट नहीं करवाया. किसी को क्लिक हुआ? देखते हैं. चलो सरस. बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 10,000 की 12,000. 10 की 12 12,000 into 2.5, that is 30,000. Is that right? Hello? This is application money received. Application money received. 12,000 into 2.5, that is 30,000. बराबर छे. What is the second entry? Equity share application account debit
equity share capital to what? Bank. Equity share allotment account, right? बराबर है? Equity share application to capital to equity share allotment account. बराबर छे? मिला? अभी equity share application में तो 30,000 है, ये nullify करना है. इसमें से कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हो आप? 10,000 शेयर ही आपने इश्यू किया ना, 10,000 इंटू 2.5 25,000 ही कर सकते हो. तो एक्सेस कितना हुआ आपका? 2,000 शेयर्स पे 2.5 रुपीज 5,000. यू नो व्हाट इज प्रो रेटा? कोई दुखी हुआ प्रो रेटा में? Every shareholder got some number of shares in the ratio of 6:5. 12,000 is to 10,000. That is 6:5. जिसने 6 अप्लाई किया उसको 5 मिला, जिसने 12 अप्लाई किया उसको 10 मिला, and so on and so forth. Everyone got some number of shares, right? Okay, this is application transferred to capital and excess transferred to allotment. Excess transferred to allotment. Correct? Sorted? Okay? So for the third entry, do you have any premium? No premium. So it is equity share allotment to what? Equity share capital. बराबर है? कितने से मल्टीप्लाई करूँ? 12 की 10. 10,000 into 2.5, that is 25,000. This is due amount, right? Due money is 25,000. This is allotment due. Allotment due. Okay? Now you got to receive the money, right? So bank, then did all the shareholders pay? Who defaulted? B. So bank call in arrears to equity share allotment. बराबर है? Bank call in arrear to equity share allotment. Correct? सोचो 25,000 expected थे, 25,000 लिखूं? 25 में से already 5 आ चुका है, तो 20,000 was expected money. इसमें P ने default किया, कितने shares हैं P के? 100 shares. So should I do 100 into 2.5 straight? 250. Are you getting it? Can I do directly 100 into 2.5? He was not supposed to pay 2.5 at first place. You know why? Because he was also with others in pro rata category. Pro rata category में था, मतलब उसका भी एक्सेस पैसा कंपनी में पड़ा था. उसके लिए छोटा सा नोट बनाने का है. पहली बार आप ये नोट बना रहे हो, तो ध्यान से देखना. वर्किंग नोट नंबर 1 फॉर मिस्टर पी. वर्किंग नोट 1 फॉर मिस्टर पी. कैसे बनाने का देखो. What was the ratio of application to allotment? 12,000 shares अप्लाई हुए थे, जिनको कितने अलॉट हुए थे? 10,000. P को अलॉट कितने हुए? 100. मतलब क्या P ने 100 ही शेयर्स अप्लाई किए होंगे? नहीं. उसने कितने अप्लाई किए होंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. उसने कितने अप्लाई किए होंगे? 100 into 12,000 upon 10,000. That is 120. Are you getting it? 12,000 को 10,000 अलॉट हुए हैं. मतलब किसी ने 6 शेयर अप्लाई किया तो उसको 5 अलॉट हुआ है. 12 शेयर अप्लाई किया तो 10 अलॉट हुआ है. 120 अप्लाई किया तो 100 अलॉट हुआ है. आर यू गेटिंग द पॉइंट? बोलने का मतलब हर किसी को कुछ ना कुछ शेयर्स अलॉट हुए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा शेयर्स अप्लाई किए होंगे, राइट? कुछ ज्यादा शेयर्स अप्लाई किए होंगे तब जाके कम अलॉट हुए हैं, राइट? सो पी ने कितने अप्लाई किए होंगे? 120. अगर P ने 120 के लिए अप्लाई किया था तो उसने एप्लीकेशन मनी भी कितने पे भरा होगा? 120. So application received from P would be what? 120 into 2.5. That is 300. 300 रुपया P ने भरा. P ने 120 शेयर अप्लाई किए. उसने बोला मुझे 120 शेयर्स दे दो. मैंने 300 रुपया भर दिया. कंपनी ने बोला नहीं सॉरी,
ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है, प्रो रेटा अलॉटमेंट हुआ है, और आपको 120 अलॉट नहीं हुआ, आपको कितने अलॉट हुए हैं? 100 शेयर्स। तो इसको अलॉटमेंट खाली 100 का हुआ है। तो कंपनी ने क्या बोला? एप्लीकेशन रिक्वायर्ड, आपसे रिक्वायर्ड एप्लीकेशन इज नॉट 120 into 2.5, 100 into 2.5 था आपका। तो कंपनी ने बोला आपको 100 ही शेयर्स अलॉट हुए हैं, आपका 250 हम लोग रखेंगे। तो बोला बाकी का 50 रुपया, तो बाकी का 50 रुपया हम लोग क्या करते हैं? अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको बोलते हैं एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, इसको बोलते हैं एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। एक्सेस कितना है उसका? 50 रुपीज है। हाउ डिड यू गेट इट? 300 रुपीज था, 300 रुपीज में से 250 रिक्वायर्ड था उसका, क्योंकि अलॉटेड शेयर्स वर जस्ट 100। एक मिनट, अलॉटेड शेयर्स वर जस्ट 100, तो 250 रिक्वायर्ड था। एक्सेस कितना था उसका? 50 रुपीज एक्सेस था। ये कंपनी में ही पड़ा था। ये जो एक्सेस है ना, ये 5000, इसमें पी का 50 है, सभी शेयर होल्डर का एक्सेस पड़ा हुआ है, ये सभी को प्रो रेटा अलॉट हुआ है। किसी का 50 रुपया है, किसी का 100 रुपया है, किसी का 200, 500, 1000। एवरी शेयर होल्डर हैज सम मनी विद द कंपनी, सो पी का कितना है? 50। अब when the time comes to pay allotment required, वैसे तो कितना है उसका? 100 into 2.5, 250 है। अलॉटमेंट रिक्वायर्ड 100 शेयर्स पे लेगा, अभी 120 से कोई लेना देना नहीं है। बट कंपनी क्या बोलेगा कि पी भैया आपको 250 भरने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी 50 हमारे पास पड़ा है, तो उसको कितना भरना था? 200 ही भरना था। जो उसने नहीं भरा वो हो गया उसका कॉल इन अरियर। तो कॉल इन अरियर 250 नहीं है, कॉल इन अरियर इज जस्ट 200। Call in arrear is not 250, it is just 200. Did you get it? How? क्योंकि देखो, every shareholder had to pay how much? 5 rupees. Application allotment लगा के 5 रुपया भरना था, इसको भी 5 रुपया भरना था on 100 शेयर। तो इसने पहले 300 भरा, फिर 200 भरना था। 300, 500, 300, 200 कितना हुआ? 300, 200 कितना हुआ? 500। पहले 300 भरा था, अब 200 भरना था, तो टोटल 500 हो जाता। पहले 50 रुपए ज्यादा भरा, 50 रुपया कम भरना था, तो 500 हो जाता उसका। 100 into 500, बट उसने 300 भरा, आगे का 200 भरा ही नहीं। समझ में आया? तो पहले क्या करने का? एप्लीकेशन रिसीव, इतना अप्लाइड शेयर्स है, फिर रिक्वायर्ड जितना अलॉट हुआ, फिर एक्सेस मिलेगा। एक्सेस के बाद क्या ढूंढने का? अलॉटमेंट रिक्वायर्ड, कितना अलॉटमेंट रिक्वायर्ड है, फिर कंपेयर करो। जो एक्सेस है वो जाएगा उसका एडजस्टमेंट में, और बचा हुआ पैसा उसको पे करना था, वो पे नहीं किया, दैट इज कॉल इन या। इतना सब करने से जो 5000 को डिवाइड बाय 10000 into 100 भी तो कैसे? वो भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, बराबर। दैट आल्सो यू कैन डू। प्रॉब्लम तभी आएगी जब एकदम होल नंबर्स ऐसे नहीं आएंगे, आपको पॉइंट वाले आएंगे या प्रीमियम आएगा, तभी इशू आएगा। तो देखना पड़ेगा इतना प्रीमियम का पार्ट इंक्लूडेड है कि नहीं इंक्लूडेड है, वो देखना पड़ेगा। पॉइंट वाले शेयर्स नहीं होते हैं, तो अपने को राउंड ऑफ करना पड़ेगा उधर। इफ एट ऑल यू गेट इन पॉइंट, देन राउंड ऑफ करना पड़ेगा। समझ में आया नोट? तो ये नोट कब बनेगा? ये नोट तभी बनेगा जब एक्सेस है। एक्सेस था ना उसका प्रो रेटा में, एक्सेस है तो नोट बनेगा, एक्सेस नहीं है तो नोट बनाने का। तो हमने 12th में भी ऐसे सम किए हैं, हमने तो ये नोट नहीं बनाया कभी। 12th वाले सब में ध्यान रखना, कभी भी प्रो रेटा था ना, प्रो रेटा, तो अलॉटमेंट में कॉल इन अरियर है ही नहीं। कॉल इन अरियर है, लेकिन कहां से आता है? फर्स्ट कॉल से आता है। जब तक सबका एक्सेस खत्म हो गया, तो आप डायरेक्टली अभी फर्स्ट कॉल में अगर कॉल इन अरियर है तो फिर ये नोट बनाने की जरूरत नहीं। फर्स्ट कॉल तक किसी का भी एक्सेस पैसा पहुंचा है नहीं, अलॉटमेंट में सबका एक्सेस पैसा खत्म हो गया। समझ में आया? अलॉटमेंट में सबका एक्सेस पैसा खत्म हो गया, तो जहां एक्सेस है वहां नोट बनेगा, एक्सेस नहीं है तो नोट बनाने की जरूरत नहीं। तो कॉल इन अरियर इज नॉट 250। हाउ मच इज कॉल इन अरियर? एग्जैक्टली, इट इज 200। कॉल इन अरियर इज नॉट 250, कॉल इन अरियर इज 200, और बैंक में आएगा 19,800। दिस इज अलॉटमेंट रिसीव्ड एंड कॉल इन अरियर एडजस्टमेंट। अंडरस्टूड? समझा कि नॉट? ओके,
कॉल इन एरियर का लॉजिक क्या दिमाग में? प्रो रेटा था, एक्सेस पैसा था, इसके लिए ये नोट बनाया, नोट से आपको मिल जाएगा। देन गो फॉर फर्स्ट कॉल, अभी सब गाड़ी सेम है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा बताओ? 10,000 into 2.5, 25,000. This is the due amount. This is first call due. Now you go for first call received. First call received. So what is the entry? Bank call in arrear to equity share first call. Once a defaulter, always a defaulter. बराबर है? Once a defaulter, always a defaulter. So P ने तो इधर डिफॉल्ट किया है, Q ने भी कर लिया है। Q के कितने शेयर्स? 200। अभी नोट बनाओ कि नहीं बनाओ? अभी किसी का एक्सेस पैसा बचा है? एक्सेस कब तक था? अलॉटमेंट। अभी तो सब लोग एट पार है। Everyone is supposed to pay 2.5. P is also supposed to pay 2.5. Q is also supposed to pay 2.5. So directly you can calculate your CRA. It is 300 into 2.5, 750. समझा? लोचा किधर था खाली? अलॉटमेंट। क्योंकि अलॉटमेंट में क्यों लोचा हुआ? डायरेक्ट कॉल इन अरियर क्यों नहीं मिला? क्यों नोट बनाया? बिकॉज प्रो रेट एक्सेस पैसा पड़ा हुआ था, तो 250 नहीं भरना था, 200 भरना था। ठीक है, दिस इज फर्स्ट कॉल रिसीव एंड कॉल इन अरियर एडजस्टेड। ओके, सो ये पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। देन इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। थिंक एंड टेल मी क्या करेंगे? 10,000 into 2.5, that is what? 25,000 again. This is second call due. Second call due. Again, once a defaulter, always a defaulter. So tell me, who is defaulting on second call again? Again, P and Q both 100 shares of P, 200 shares of Q. Should I make this note again? No need. Again, everyone is at par. Everyone is supposed to pay 2.5. So 300 into 2.5 मतलब 750. 45,000 expected था, हाथ में आया 24,250. This is second call received and call in arrear adjusted. समझा कि नहीं? Correct? Let's go for forfeiture now. How many shares will you cancel? How many shares are you going to cancel? 300 shares. Yes? 300 shares will cancel. Yes? 300 shares cancel करने हैं तो एंट्री क्या होगी? Equity share capital account debit to what? Call in arrear to what? Share forfeiture. Equity share capital to call in arrear to share forfeiture. Think about it. Capital कितने से multiply करेंगे? 10 से, क्योंकि ये cancelling at the end, right? So 300 into 10 बोले तो 3,000. Call in arrear यहाँ से आप 750, 200, 750 मतलब 1,700 और 1,300 रुपया हुआ आपका forfeiture. मैंने आपको बोला ये नोट बना के रखना. ओके, ये नोट अभी हर एक सम में करना कि P से कितना हड़पा और Q से कितना हड़पा। 1,300 तो टोटल हड़पा है, वो तो मिल गया अपने को, बैलेंसिंग फिगर मिल गया। लेट्स फाइंड आउट द सब डिविजन नाउ। उसको ऑपरेशन करते हैं उसका। बताओ इसमें P से कितना हड़पा और Q से कितना हड़पा। तो देखो बोर्ड पे देखना, P ने क्या भरा था? सिर्फ एप्लीकेशन। नाउ रिमेंबर वेरी क्लियरली, if a person is paying only application, if a person is paying only application, take his applied shares. If a person is paying only application, take his applied shares. Normally हम लोग allotted shares ही लेते हैं, but if the person is paying only application, take his applied shares. अगर उसने application plus allotment भरा है, take his allotted shares. अगर उसने application plus allotment plus first call भरा है, take his allotted shares. But if he has paid only application, take his applied shares. तो ये आंसर मैच होगा, नहीं तो घूमोगे आप।
If a person has paid only application, take is applied shares कितने थे? 120 into 2.5 मतलब 300. 120 into 2.5 300, यही पैसा भरा और भाग गया. ये पैसा भर के, but Q ने क्या भरा था? Application and will I take his applied shares or allotted shares? सर क्यों applied shares? देखो applied shares इसलिए नहीं लिया क्योंकि applied shares में उसने जितना ज्यादा भरा था उतना allotment में कम भरा. कर तो बैलेंस ही दिया है. देखो Q को 200 शेयर्स अलॉट हुए थे, मतलब उसने 240 अप्लाई किया होगा. Q की बात कर रहा हूँ. Are you with me? Q को 200, ये कैसा? P को 100 अलॉट हुए, उसने 120 अप्लाई किया. Q को 200 अलॉट हुए, उसने 240 अप्लाई किया रहेगा. तो उसने 240 पे 2.5 भरा होगा, है ना? 600 भरा होगा. रिक्वायर्ड कितना होगा? 200 into 2.5 मतलब 500, मतलब उसका एक्सेस होगा 100, है कि नहीं? अलॉटमेंट के बाद भाई से कितना मंगाया? 200 into 2.5 which is ऐसे 500 चाहिए, लेकिन 500 नहीं 400 ही भरा होगा उसने. एक्सेस था 100. 200 into 2.5 भरना था, लेकिन भरेगा खाली 400. तो भरा कितना? 600 और 600 400 कितना हुआ? 1000. व्हाट इज 1000? 200 into 5. मतलब अप्लाइड में जितना ज्यादा भरा है उसने फर्स्ट को सॉरी अप्लाइड में जितना ज्यादा भरा है उतना अलॉटमेंट में उतना कम भरा है और बैलेंस आउट कर दिया. तो इफ अ पर्सन इज पेइंग ओनली एप्लीकेशन एंड रनिंग अवे, ओनली एप्लीकेशन, द पर्सन इज पेइंग ओनली एप्लीकेशन, टेक इज अप्लाइड शेयर्स. क्योंकि उसने जो एप्लीकेशन भरा है वो अप्लाइड शेयर्स पे भरा है. 120 मतलब इसका सब डिवीजन है 300 रुपया एप्लीकेशन पूरा नहीं, 250 ऑन एप्लीकेशन एंड 50 ऑन अलॉटमेंट. He has paid 250 on application and 50 on. You can't get that subdivision and वो मगजमारी है. उससे अच्छा सीधा take applied shares. सीधा take, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा? 100 into 2.5 250, 100 into 0.5 8 आना उसने allotment का भरा. अभी 8 आना है, कभी वो फिगर बहुत पॉइंट में है तो लटक जाओगे आप. डेसिमल ढूंढना माथे का दुखावा है. सिंपल रखो. 4 फीचर का हड़पा हुआ पैसा लेना है. If the guy is paying only application, take his applied share. If he has paid application plus allotment, take his allotted. If he has paid application plus allotment में first call, take his allotted. बाकी subject allotted. Simple. Okay? तो Q का 100 into 5 कितना होगा? 500. टोटल हुआ 200 into 200 into 5. तो 1000 हुआ. तो टोटल हुआ 30. अलॉटेड शेयर्स. ओके, गया भेजे में कि नहीं? बोलो हेलो. अभी गो फॉर रीइश्यू. क्या भाव पे रीइश्यू है? पहला केस में ऑल द शेयर्स आर रीइश्यू, बराबर है? क्या भाव है? 10 मतलब नो लॉस, राइट? हेलो, है कुछ लॉस? No loss. So bank to equity share capital, I think 300 shares into 10, right? Yeah. 3000. Bank to equity share capital 300 into 10. Okay. And then transfer. Can I transfer entire money? पूरा कर दूं खाली शेयर फॉर फीचर? कर सकते हो? सारे रीइश्यू कर दिए. सारा शेयर फॉर फीचर कैन बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व. फुल रीइश्यू के पार्ट रीइश्यू फुल है. तो क्रेडिट माइनस डेबिट 1300 माइनस 0. शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व शैल बी हाउ मच? 1300. स्टोरी ओवर. बट सम खत्म नहीं हुआ. केस 2 में क्या दिया? उधर पढ़ो. केस 2 में क्या दिया? ओनली these shares are issued. Only these shares are issued. यहाँ तक क्या भेजे में सबके? अब सिर्फ P को पकड़ो. These shares are issued मतलब क्या है कि 9th entry तक the problem remains same. 9th entry तक 4 फीचर तक सब कुछ सेम है. 10th entry में हमने सारे shares reissue नहीं किए हैं, सिर्फ P के किए. सिर्फ P के किए. Q और R तो है. Q के अभी तक reissue नहीं किए. P के किए. P के कितने शेयर्स हैं? 100 की 120? 100 allotted. Everywhere you have to take allotted. Only for this calculation you have taken applied and here you have taken applied in the first step. बाकी applied जैसा कोई शेयर्स होता ही नहीं.
वो तो कितना भी अप्लाई करे, 2000 अप्लाई करे, थोड़ी अलॉट करेंगे। एक्चुअल शेयर्स कितने उसके अलॉटेड 100 शेयर्स। इज इट क्लियर? क्या भाव पे किया देखो, 8 पर शेयर पे किया, मतलब नुकसानी पे किया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक शेयर फॉर फीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में कितना आएगा 100 इंटू 8 800, लॉस कितना हुआ 100 इंटू 2 200, कैपिटल आएगा 100 इंटू 10 1000 बराबर। Till you have to transfer share forfeiture to capital reserve. Can I do सबका profit minus सबका loss? Can I do सबका profit minus P का loss? No. What do I need to do? P का profit minus P का loss. P का profit minus P का loss. This is P का रेशियो क्या है? P का profit कितना था 300 minus P का loss कितना है 200, तो 300 माइनस। सर क्यू का प्रॉफिट क्यों नहीं लिया? क्यू का प्रॉफिट इसलिए नहीं लिया क्योंकि उसका रेशियो अभी भी बाकी है, उसमें लॉस हुआ तो कहां से निकालोगे पैसा? उसका रिजर्व रखना पड़ेगा। क्या ना क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है? लास्ट लेक्चर बोला था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तब कर सकते हो जब एक ही बंदा डिफॉल्टर हो और उसी के पार्ट शेयर्स इश्यू कर रहे हो, तब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। पी ने कुछ अलग भरा है, क्यू ने कुछ अलग भरा है, आपका क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर बैठेगा भी नहीं। करके देखो, अब देखोगे 1300 रुपया 300 शेयर्स का, तो 100 शेयर्स का कितना, ऐसा आंसर बैठने वाला नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 300 माइनस 2, पी का प्रॉफिट माइनस पी का लॉस, सिंपल। क्यू का कर दे तो क्यू का प्रॉफिट माइनस आर का, तो है इधर कितना है 100 रुपया मिला, ऐसा है। मेन चीज था इधर अलॉटमेंट का एक्सेस। ये नोट गया दिमाग में सबके? इसमें कंफ्यूजन है किसी को? बोल दो, पूछ लो। एनीवन इज फाइंडिंग दिस नोट कंफ्यूजिंग? यस, वो डायरेक्टली युग ने बोला नो, ये करो, ये नोट पी ने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट। नॉर्मली तो क्या करते हैं 100 into 2.5 कर लेते, बट P was from pro rata, everyone was from pro rata, तो सबका पैसा कंपनी में था एक्सेस, तो P का भी था। तो P ने कितना शेयर्स अप्लाई किया होगा? क्योंकि 12 को 10 मिला है, इसको 100 मिला है, तो इसने अप्लाई 120 किया रहेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। 120 अगर अप्लाई किया है तो एप्लीकेशन पे 120 पे भरा रहेगा। तो उसने 120 में 300 रुपया दे दिया कंपनी को, बोला मेरे को 120 शेयर चाहिए, कंपनी बोला नहीं तेरे को तो 100 ही मिलेगा। तो तेरा रिक्वायर्ड कितना है 100 into 2.5 250, तो बोला मेरा 50 रुपया लाओ, बोला नहीं रिफंड नहीं करेंगे, किधर डाल देंगे अलॉटमेंट में। पी को बोला गया कि जब तू अलॉटमेंट भरेगा तब 50 रुपया कम भरना, तो एक्चुअली उसको भरना था 250, लेकिन वो 50 कंपनी के पास था ना, ये 250 के साथ 100 into 2.5 ये भरना था, उसमें से 50 ऑलरेडी कंपनी के पास था, तो कंपनी ने बोला तू सिर्फ 200 भर, वो भी उसने नहीं, वो हो गया उसका कॉल। Is this clear? देखो 24th sum. Tom Limited issued 50,000 equity shares of 10 each payable in 4 equal parts. Company received application on 70,000 shares. Money on excess applications diverted towards allotment. P was holding 6,000 shares, allotted 6,000 shares, did not pay allotment. And Q was allotted 4,000 shares, did not pay first call, and all the shares were forfeited and forfeited shares were reissued. And then again individual cases भी है वहां पे, दिख रहा है? पहले आप यहां तक कर सकते हो, all shares reissued तक कर पाओगे। ए भी सेम है, यहाँ पर भी देखो प्रोरेटा है, हेलो प्रोरेटा है, और कहाँ डिफॉल्ट हो रही है अलॉटमेंट। तो ये नोट बनाने का कि नहीं बनाने का? बनाने का, दिमाग लगाओ, चलो ट्राई करो। I'll also solve, but don't try this. Create.